What is your experience from border to the boardroom? आपको जैसे मालूम है हम लोग फौजी है एंड वी लव टू टेल स्टोरीज इफ आई टेक यू थ्रू माय एंटायर जर्नी फ्रॉम द डे आई जॉइंड द आर्म्ड फोर्सेस टिल द टाइम आई हैव नाउ stepped out into the real estate as luck would have it then after NTRO I joined DLF FDI प्रोजेक्ट आ रहा था लंदन से को डुएट ग्रुप नाम की कंपनी थी जो इस कंपनी ने फिर मुझे गुड़गांव में SPB हेड बनाने के लिए एक ऑफर दे दिया कि मैंने एक्सेप्ट किया। In the last 5 years, अगर हम social infrastructure की बात करें तो Sona has evolved a lot of social infrastructure. We have school, we have colleges, we have hospitals, we have malls. Everything is present here. सबसे बड़ी दिक्कत चल रही थी connectivity की. After that road, you mentioned also elevated road. Now the city center of Gurgaon and Sona is just 20 minutes away. Hello everyone, I am Advocate Anuj Chauhan from Gurgaon Skyline and I am back with another episode of Skyline Talks Part 2. आज का एपिसोड बहुत ही खास है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ टॉपिक बट बिकॉज ऑफ आवर गेस्ट. सो प्लीज वेलकम मेजर जनरल सतीश सहजपाल, IIT alumni 1969, आर्मी वेटरन of Indo-Pak War 1971 and have a great experience in real estate. So very welcome sir, welcome to the episode. Anush, thank you very much. I'm delighted to be here with you and even more delighted to be exchanging my impressions of today's visit. And you are welcome to ask me whatever my impressions are. So sir, what is your experience from border to the boardroom? Anuj, border to the boardroom क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा हो सकता है. आपको जैसे मालूम है हम लोग फौजी है जी. and we love to tell stories. So if I take you through my entire journey of from the day I joined the armed forces till the time I have now stepped out into the real estate, it'll take a very long time. So I'll try and be precise. Yes. And essentially, in fact, the question that you asked me also takes me back to when I was a youngster in the army. I did my graduation in civil engineering from IIT Kharagpur. Great. And then I walked straight into 71 operation, and we had those operations inside Pakistan for nearly about 6 odd months. 6 महीने के बाद में then it was decided by government of India to pull us out from there, और उसके बाद हम लोग फिर श्रीनगर में चले गए. And like it happens in the army, from posting to posting, one kept moving. And then I was very lucky to have qualified in most of the exams. I went for Defense Services Staff College exam, and then I did various courses. And when my turn came for various promotions, the colonel, then I became a brigadier, and I became a major general. So I've been extremely fortunate in my army journey. And so therefore, without बहुत ज़्यादा आर्मी के बारे में और ना बताते हुए, unless आपके पास कोई specific question है आर्मी के बारे में, हुआ क्या था अनुज कि मेरा क्वालिफिकेशन पढ़ाई लिखाई में और उसके बाद में मेरा ड्यूरिंग माय जर्नी थ्रू द आर्मी बहुत ज़्यादा पोर्शन कंस्ट्रक्शन के आसपास रहा. और जब मैं आर्मी से सुपर एनुइट हुआ 2005 में, so there was a new organization coming up actually in the country by the name of NCLT. को एक डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी. NTRO करेक्शन, NTRO में मैं ज्वाइन किया. उसके बाद में उनका कंस्ट्रक्शन में कराता रहा रियल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का. तो जैसा आप देख रहे हो कि मेरी जर्नी में विदाउट डिज़ाइन, विदाउट टू मच ऑफ अ चॉइस, आई जस्ट केप्ट स्टेपिंग इन from one construction related activity to another construction related activity. As luck would have it, then after NTRO I joined DLF. बड़ा नाम है. तो DLF में जब मैं आया तो इन्होंने उन दिनों में SEZs का बहुत रिवाज चला हुआ था. तो इनके SEZs स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अलग अलग टाउन्स में प्लान किए हुए थे. तो इनके साथ मैंने मेरा सौभाग्य था कि मैं जयपुर में गया पहले प्लानिंग देखने के लिए, रिकॉनेसेंस करने के लिए. उसके बाद मुझे साइड स्टेप कर दिया गया लुधियाने में. दैट इज वंडरफुल एक्सपीरियंस देयर. फिर हम फाइनल फेज ऑफ DLF जर्नी में हम आ गए पंचकुला में. पंचकुला की जो सेक्टर 3 की जो प्रोजेक्ट है 207 एकड़,
जी उसमें मेरा काफ़ी हाथ रहा उसका रिकॉनेसेंस करने में और वो ज़मीन को फाइनलाइज वगैरह करने के लिए। ये करने के बाद में एक एफडीआई प्रोजेक्ट आ रहा था लंदन से, को डुएट ग्रुप नाम की कंपनी थी जो 1,000 करोड़ रुपए लेके इंडिया में आ रही थी, मिड टर्म मिड साइज टाउन्स में ये रियल एस्टेट करना चाह रहे थे। उनमें से एक डेस्टिनेशन था गुड़गांव। तो इस कंपनी ने फिर मुझे गुड़गांव में एसपीबी हेड बनाने के लिए एक ऑफर दे दिया, जो कि मैंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद 92 सेक्टर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और लगभग 10 साल तक मैं इस प्रोजेक्ट में रहा। उसके बाद में जैसा होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, वो जो कुछ भी हुआ, एनसीएलटी में केस चला गया, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी वगैरह में गया, दैट्स अ नॉर्मल रूटीन थिंग। लेकिन इतना समय में रियल एस्टेट में रहने के बाद में कुछ ना कुछ रियल एस्टेट के साथ ही जुड़ के करना है, ऐसा सोचता रहा मैं। तो रियल एस्टेट में जो भी कुछ आता था, वो अगर कंस्ट्रक्शन का मौका नहीं मिला तो चैनल पार्टनर्स के साथ में जुड़ के हमने कुछ करना शुरू किया। तो मुझे मैं, जैसा कि मैंने बोला, सुपर एनिमेशन के बाद मैं डायरेक्ट गुड़गांव में आ गया और इतने साल गुड़गांव में रहने के बाद और रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड होने की वजह से मुझे यहाँ के जितने भी सेक्टर्स और माइक्रो मार्केट्स हैं उनके बारे में फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज तो है। Sir, before going deep down in the micro markets, my first and most personal question: what is the driver or what is the driving force in the real estate that drives you here? Drives me here means drives to Sona, जैसे कि आज हम लोग आए हैं, या कि जनरली रियल एस्टेट एज अ जनरली रियल एस्टेट में जैसे मैंने बोला है, एक तो मेरा कंस्ट्रक्शन से, आई डोंट नो व्हाई आई हैव हैड दिस फैसिनेशन। और जब हम लोगों ने ये वाला प्रोजेक्ट किया 92 सेक्टर का, तो वहाँ पे लो राइज से लेके फाइनली वी वेंट टू व्हाट स्टील प्लस 19 के बहुत सारे टावर्स बनाए, स्टील प्लस 23 के 3 प्रोजेक्ट्स बनाए लास्ट में। सो कंस्ट्रक्शन लगातार होता रहा जी। और बिकॉज मैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में रिस्पॉन्सिबल भी रहा और इन्वॉल्व भी रहा, इसके साथ साथ जो सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग थे वो भी मेरे साथ डिस्कस किए बिना तो कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग कर नहीं सकते थे। इसलिए वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनको कैसे गाइड करना है, क्या इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी है इत्यादि। इस तरीके से मैं अभी तक रियल एस्टेट में जुड़ा हुआ हूँ। कुछ चैनल पार्टनर्स ने फिर मुझे आके बोला कि सर हम लोग कुछ वीडियोस बनाते हैं अलग अलग माइक्रो मार्केट्स के लिए, तो फिर एक वेल्दी वॉल्स करके चैनल पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम लोगों ने मिलके गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR, और उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे, न्यू गुड़गांव, थोड़ा इस तरफ भी आए सोना की साइड में, और उतना बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो आज मैं अनुज के साथ तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठा हूँ, तो आई होप we'll interact and I'll learn much more about Sona. Definitely sir. Just for the audience context, आज मुझे और सर को टाइम मिला था, आज हमने पूरा साउथ ऑफ गुड़गांव, सोना, गुड़गांव जनरली माइक्रो मार्केट्स में बटा हुआ है, तो आज मैंने और सर ने एक ड्राइव करी टू द माइक्रो मार्केट साउथ ऑफ गुड़गांव, सोना। हमने स्टार्ट करा राजीव चौक से, वी वेंट टू वेरियस बिल्डर्स, डेवलपर्स, बहुत सारी डेवलपमेंट देखी, हम सेंटर पार्क गए, त्रिहान के फ्लोर्स, BLF एंड एटसेट्रा, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। देन वी वेंट टू द IMT सोना, IMT में हमने डेवलपमेंट देखी, वी वेंट टू ATL बैटरीज, अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ Japanese 10,000 CR. So we are just having the conversation of south of Gurgaon. So why not we planned we have this conversation in front of camera just for the context. Now sir, आपको कैसा लगा सोना? सोना अनुज, सोना मुझे अच्छा लगा फॉर वेरियस रीजंस एंड और इम्पॉर्टेंट लगा फॉर क्वाइट डिफरेंट रीजंस। अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि जब मैं शुरू में सोना में आया था, सो इट यूज्ड टू टेक मी अ लॉन्ग टाइम एंड आर्डुअस काइंड ऑफ अ जर्नी, रोड उतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी एफर्ट लगती थी।
फिर उन्हीं दिनों में हमने कुछ पैसे लगाए यहाँ पे CHD रिसोर्टिको नाम के प्रोजेक्ट में, जी। वो प्रोजेक्ट फंस गया, सो दैट वाज अनदर बैड एक्सपीरियंस। लेकिन इस बार जब मैं यहाँ पर आया हूँ जी। आपके साथ में, सो दिस ब्यूटीफुल रोड विच इज नाउ कम अप, जो एलिवेटेड रोड है, इट्स लाइक एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोड, Yeah. और इंडिया में सबसे वन ऑफ द बेस्ट रोड, One of the best road. इट्स ऑल्सो अ नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 248 तो एक तो ये एस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। दूसरा, यहाँ पे इतने सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी सारे तो पहले ही थे, पहले ही थे। गोइंका, सो ऑन, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे खुल चुके हैं, और GD गोइंका यूनिवर्सिटी वगैरह भी के एक्सपेंशन जी। प्लान्स भी है, और रास्ते में हमें बहुत सारे मॉल्स देखने Malls को मिले, देखे। सो देयर लॉट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, एंड लो एंड बिहोल्ड, जैसे हम पहली बार आए थे तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट उतना देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार रोड के चारों तरफ जितने भी नॉन बिल्डर्स है, वो सब कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो Definitely, sir. एनकरेजिंग टू सी, जो रास्ते में जो प्रोजेक्ट्स देखे, Definitely, उसको देखने sir. में अच्छा लगा। In the last 5 years, अगर हम social infrastructure की बात करें तो Sona has evolved a lot of social infrastructure. We have school, we have colleges, we have hospitals, we have malls. Everything is present here. सबसे बड़ी दिक्कत चल रही थी कनेक्टिविटी की, बट आफ्टर दैट रोड द यू मेंशन आल्सो एलिवेटेड रोड, नाउ द सिटी सेंटर ऑफ गुड़गांव एंड सोना इज जस्ट 20 मिनट्स अवे। सो जस्ट 20 मिनट्स मेक अ लॉट हैपन, क्योंकि कनेक्टिविटी से सिर्फ रोड नहीं आती, कनेक्टिविटी के साथ डेवलपमेंट आती है, लोग आते हैं, बसावट बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, जिसकी वजह से हम सोना, साउथ ऑफ गुड़गांव, आज के टाइम पे जितने भी रेडी टू मूव प्रोडक्ट्स हैं, दे हैव अ एस्टोनिशिंग 90% ऑक्यूपेंसी रेट, कि मतलब सोना में घर बनाओ, उन्हें रहने के लिए चाहिए, ऐसा सीन चल रहा है। आपने भी देखा होगा एलिवेटेड रोड पे दोनों साइड प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं सारे हैबिटेबल हैं, जो आपको लास्ट 5 years अगो आपको नहीं देखने को मिलते थे बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। सो what do you think about the connectivity at present? We have the great NH248A elevated road, international standard, but आप फ्यूचर कैसे देखते हैं कनेक्टिविटी का यहाँ का? अनुज, फ्यूचर भी मोरलेस यहाँ पे आ ही गया है अभी, जिसको हम लोग पहले 5 साल पहले फ्यूचर बोलते थे, अभी दैट्स नॉट अ फ्यूचर एनी मोर, एक्चुअली दैट इज हियर टुडे। यस, एलिवेटेड रोड के बारे में आपने बात ही करी, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर वो यहाँ पास से ही गुजर रहा है, हम लोग रास्ते में से आए। फिर KMP एक्सप्रेसवे जो हम हमेशा देखने जाते थे, जो मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट था 92 सेक्टर में, वहाँ से हम लोग अक्सर इसका प्रोग्रेस देखने जाते थे। अभी वो रोड यहाँ पे पास से गुजर रहा है, और ये सारी की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ये तो एक्साइटिंग है जी। लेकिन मुझे सोना के भविष्य के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में एक और रोड जो बहुत एक्साइट करती है, मैं बार बार उसके बारे में बोलता रहता हूँ, आई होप इट कम्स अप क्विकली। एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में जो 63 सेक्टर है जी, वहाँ से एक रोड एमिनेट कर रही है, जो कि प्लान, साइड प्लान में दिखलाया गया है, दैट इज 60 मीटर वाइड, और वो जनरली इस इलाके में जहाँ पे हम लोग लगभग बैठे हुए हैं जी, यहाँ पर उसका अलाइनमेंट दिखा रहे हैं। Once that road comes up 60 meters road, then people living in this area don't have to worry about the toll plaza and the crowd of the national highway. They can drive straight here. I think once that road comes up, that is really going to up the ante for this complete area के development में. That road will have a very major say. आई डोंट नो वेदर इज राइट फॉर मी, मेरा उचित है वो रोड को इतना ध्यान से देखना, लेकिन मैंने जैसे बोला है कि मैं रियल एस्टेट में ऐसे इंटरेस्टेड हो जाता हूँ जी, लेकिन उस रोड के चारों तरफ में डेवलपमेंट और यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए उस रोड की वजह से जो फायदे होंगे वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। डेफिनेटली सर, एज अ एड ऑन, इंटरनल सोना पूरा प्रॉपरली प्लान्ड है एज अ मास्टर प्लान ऑफ 2031, हम देख सकते हैं इसके अंदर 60 मीटर एंड 24 मीटर प्रॉपरली प्लान रोड्स हैं जो हमें इंटरनल सेक्टर से कट करेंगी। और हम अगर हम फ्यूचर के जाएं तो हमने रिसेंटली वाटिका पे एक क्लोवर फ्लोर बन रहा है जिसकी DPR भी हो गई है, सबमिट हो गई है, DPR सबमिटेड है एंड बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है। समहाउ क्लोवर फ्लोर हमें दिखने लग जाएगा। एंड देन द ग्रेटर एसपीआर इज ऑल्सो कमिंग टू द रियलिटी, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गई है। सो द रोड ऑफ एलिवेटेड रोड
नाउ तो गुड़गांव और तो गुड़गांव का जो नेक्स्ट बिलियनियर हब बन रहा है गोरखपुर एक्सटेंशन रोड इज जस्ट 10 to 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोना बिकॉज ऑफ द टू न्यू रोड्स, the extension road that you mentioned 63A and the second is greater SPR road and the third one the development of Vatika Chowk Clover Floor. This will make Gurgaon more close. And आप सोना के बारे में ही हम लोग जी। बात कर रहे हैं अधिकतर। जी, जी। मेरा अपना मानना ये भी है, इतने सालों के बाद मैं यहाँ पे लौटा हूँ वापस, और जैसा मैंने पहले बोला कि मैंने कुछ कुछ वीडियोस भी बनाए हैं बाकी के गुड़गांव के लिए। मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माय ओन रीडिंग, कि जो गुड़गांव में बाकी डेस्टिनेशंस हैं, जितनी भी माइक्रो मार्केट्स है, वो या तो टोटली भर चुकी है जी, या वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं कि दैट हैज बिकम आउट ऑफ रीच फॉर अ कॉमन बायर, या फॉर वन रीजन और द अदर कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कोई रौनक नहीं आ पाई है। If you want, I don't think you want me to give you example. Otherwise, golf No, course definitely, roads sir. become astronomically expensive. Astronomically. Let's not even talk about it when you're talking about real estate. That's gone beyond let's real have an estate apple to apple experience. comparison. You talk about golf course extension road. Extension road. उसमें भी आजकल आपको 10 करोड़ से कम में कोई जी। प्रॉपर्टी दिखती नहीं है। बिल्कुल। SPR में भी जाके 3-4, 5 करोड़ के आसपास जैसे जा रहे हैं। एक एप्पल टू एप्पल अगर हम प्राइसिंग के हिसाब से देखेंगे तो अगर मैं दो और जगहों की बात करना चाहूँगा। एक तो है जो न्यू गुड़गांव है। जी। न्यू गुड़गांव में प्राइसिंग के हिसाब से सोना से शायद वो मैच कर सकता है। जी। लेकिन मेरा, जैसे मैंने बोला, मैं 10 साल तक वहाँ रहा हुआ हूँ, मैंने काम किया है न्यू गुड़गांव में। मेरा ऐसा मानना है कि न्यू गुड़गांव भर चुका है। हाँ जी। जितने भी नए प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे, जितने भी ग्रुप हाउसिंग के लाइसेंसेस थे, दे ऑल बीन एग्जॉस्टेड। और अभी लो राइज के कुछ कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गार्डन सिटी जैसे DLF बना रहे हैं, स्टेट +4 का जो परमिशन उन लोगों को मिला हुआ है, वो घर मिल रहे हैं। लेकिन DLF बीइंग DLF, वो एक्सपेंसिव तो है और एक्सपेंसिव रहेगा, वो कम नहीं हो सकता है। लेकिन जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको 1.5-2 CR के आसपास जैसा जिसका प्राइसिंग है, जिसको कि हम लोग यहाँ के कंपैरिजन में कर सकते हैं, वो जो बन चुके हैं वो बन चुके हैं। उसके बाद नया नहीं मिलेगा। रीसेल में वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी शायद हो सकती है। जस्ट अ वर्ड अबाउट द्वारका एक्सप्रेस वे। मैं अभी बात कर रहा था स्मृति से भी। द्वारका एक्सप्रेस वे पता नहीं क्यों इतना महंगा तो हो गया। हाँ। और बड़े बड़े नाम वाले प्रोजेक्ट डेवलपर्स भी वहाँ पर आ चुके हैं। बट आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट गेट दैट फीलिंग दैट प्लेस रिमेन्स, जैसे रौनक कहते हैं ना, रौनक नहीं है वहाँ पे, तो बैरन सा लगता है। अगर मैं 6 बजे के बाद वहाँ पर जाऊँ तो सिर्फ वहाँ पे जो गांव इंटर विलेज काइंड ऑफ मूवमेंट है वही मुझे दिखलाई देगा, या जो लोग द्वारका एक्सप्रेसवे को एक कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ दिल्ली टू गुड़गांव आने के लिए, गुड़गांव दिल्ली जाने। उसके अलावा ऑफ इट्स ओन द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर कोई जान नहीं है जी। उन सबके मुकाबले में मेरी इस बारी सोना में आने के बाद मुझे ऐसा लगा, जब मैं वो ओम स्वीट से यहाँ पे टर्न किया, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि जैसे हम एक प्रॉपर टाउनशिप के अंदर आए हैं। अब ये कितना बढ़ेगा, इसके चारों तरफ कितनी ग्रोथ होगी, दैट विल बी ऑफ कोर्स एन ऐड ऑन। लेकिन ये ऑलरेडी एक समाज रह रहा है यहाँ पे, लोग रह रहे हैं, दुकानें हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, और जितनी फैसिलिटीज की हम लोगों ने बात करी है, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, स्कूल्स, commercial centers, medical facilities, it's all there. It's a happening, if I may call it city or sub-city, it's a happening city. Yeah. All that remains to be done here is for it to grow. Yes. और जो इसके साइड में जगह है अभी खूब, स्कोप भी है, स्कोप है, एंड सर मुझे लगता है अब जो आगे का ग्रोथ है वो पूरा का पूरा सोना में ही होगा। अगर आप मुझे इसके बारे में और कुछ बोलने का मौका देंगे तो मैं और कुछ भी बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल सर। कमिंग टू दिस, आपने बात करी कि दे आर सम माइक्रो मार्केट जो बैरन लगते हैं और वहाँ पे सिर्फ रेजिडेंशियल ही ग्रो हो जा रहे हैं। सोना के पास एक यही आउटेज मिल जाता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। वी वेंट टू IMT सोना, हमने एक फैक्ट्री देखी। सो आपका क्या नजरिया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इस माइक्रो मार्केट के लिए?
इम्पोर्टेंट जनरेशन इम्पोर्टेंट है अनुज। अगर हम देखें अब ना, आपने मुझे इतना ब्रॉड बेस सवाल कर दिया था, इसका मैं ब्रॉड बेस जवाब भी देना चाहूँगा। यदि हम जितना ग्रोथ देखें, चाहे बॉम्बे देखें, चाहे हैदराबाद देखें, चाहे बैंगलोर देखें, चाहे नोएडा देखें, चाहे गुड़गांव देखें, all this growth has built around employability. Employment के अलावा और कोई सोर्स नहीं है, कोई रीजन नहीं है इनका इतना। Even the Gurgaon itself. गुड़गांव, why not गुड़गांव? जो मेन इसका डेवलपमेंट का रीजन है वो एम्प्लॉयबिलिटी ही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं सोना की बात करना चाहूँ तो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मैं IMT मानेसर के बारे में बहुत बात करता था एक समय में, but I am told as per the Haryana government planning, IMT Sona is going to be 3 times as big as IMT Manesar. Yes sir. तो एक साइज में ये बहुत बड़ा होगा। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहाँ पे प्लान किए गए हैं और IT रिलेटेड एक पार्क जैसा बनना है। मैं AI में पढ़ रहा था, 5 एकर्स का एक प्रोजेक्ट जैसा यहाँ पर बनेगा और जैसा आप बता रहे हो वो तो है ही है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का एक गैलरी है जिसके रास्ते में ये पड़ रहा है, वो इसकी इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। वो एक तरफ से तो जैसे आपने बोला है कि दिल्ली नज़दीक में आ गया, बॉम्बे के दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो इंडस्ट्रियल, सो इट हैज़ गॉट ऑल द पोटेंशियल एंड ऑल द characteristics of being developed into a smart city. मुझे ऐसा लगता है जी सर, Sona has a lot of future, number one. Number two, Sona has not got overcrowded. Yes. And I don't think given the amount of land there is in and around Sona, ये कोई स्टेज आएगा जो ओवरक्राउडिंग की जगह बनेगा कभी ये। तो जो लोग भीड़ भाड़ से तंग आ चुके हैं, ओवरक्राउडिंग से तंग आ चुके हैं, अगर हम गुड़गांव के बारे में बात करें, दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के बारे में तो बात ना ही करें तो अच्छा है। तो उनके लिए अगर वो कोई फ्रेश एयर में सांस लेना चाहते हैं एंड दे वांट टू मूव टू सम प्लेस, पहले ये थोड़ा अनवायबल सी लगती थी सोना, लेकिन अभी वो अनवायबल नहीं लगता है, क्योंकि जैसे आपने बड़ा ठीक बोला है कि अभी जो हम डिस्टेंस है वो किलोमीटरेज के हिसाब से ना नाप के उसको मिनट्स के हिसाब से कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है जी। सो दिस इज गॉट सो ब्यूटीफुली कनेक्टेड। एक रोड आपने बताई है एलिवेटेड हाईवे, एक मैं 60 मीटर्स रोड की मैं बार बार बात करते ही रहता हूँ, वो भी एक बार आ जाएगा। सो इट्स बिकम वेरी वेल कनेक्टेड। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मेरा छोटा भाई है, ये लोग जनकपुरी में रहते थे दिल्ली में। He got 2 small children that time, और वो जनकपुरी में उनके घर के नीचे से बहुत सारे ट्रक्स ऊपर नीचे रात दिन चलते थे। और इन्होंने क्या किया, घूमते घुमाते ही केम अपॉन DLF फेज 4 में गलेरिया मार्केट के सामने बहुत सारे वेकेंट प्लॉट्स पड़े हुए थे। तो एक 500 गज का प्लॉट उन्होंने वहाँ पर ले लिया, और तब बहुत ज़्यादा बसावट नहीं हुई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे। तो इनके मन में क्या आया कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतनी पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करेंगे, बड़े होएंगे, तो दैट विल बी वेरी अनहेल्दी फॉर देम। तो अगर मैं वहाँ से एक घर यहाँ बना लूँ DLF फेज 4 में, यहाँ पे रहना शुरू कर दूँ, तो क्या होगा, बिकॉज ही इज अ लॉयर, सो ही विल हैव टू कम्यूट, कवर लॉन्गर डिस्टेंस। बट देन उसके लिए जस्टिफिकेशन उन्होंने क्या दिया कि मुझे तो क्या करना है, कार में ही बैठना है, तो मैं कार में 10 मिनट ज़्यादा बैठ जाऊँगा, तो दिल्ली से जाके मैं यहाँ आ जाऊँगा। बट एटलीस्ट माई चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल विच आर क्लीन, दे विल ब्रीथ एयर विच इज क्लीन, सो दे विल ग्रो अप ओवर हियर एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। I thought that kind of a anomaly can be applied to people who choose to live in Sona. Yes. सोना में अगर कोई रहना चाहता है इस लॉजिक के साथ में, तो ये बहुत ही उचित कंपैरिजन हो। डेफिनेटली सर, फॉर दिल्लीइट्स आई मेट वेरियस दिल्ली पीपल जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, सोना विजिट करते हैं, आते हैं यहाँ पे। जब भी वो यहाँ आते हैं, सबसे पहली चीज़ खुश होते हैं खुला बन देख के, साफ हवा देख के। दे ब्रीथ, दे यूजुअली कम। हम आई गेस दिसंबर का टाइम था, मैं एक क्लाइंट से मिला था, उन्होंने साफ आके मुझे कह रहे अनुज यहाँ सांस आ रही है। इवन इन दिसंबर जब AQI टच 400 500, इन सोना इट इज़ बिलो 100, बिकॉज डेवलपमेंट इतने अच्छे से प्लान है एंड इट इज़ इन द लैप ऑफ अरावलीज। आप सर आप खुद बताइए, आप कैसी लग रही है ग्रीनरी? हम ग्रीनरी के बीच में बैठे हुए हैं, अमेजिंग लग रही है।
गिवन अ चॉइस मैं Yes. तो बोलूंगा कि आप अपना जो ऑफिस है वो 49 सेक्टर से उठा के यहीं पे कहीं ले आओ, आपके पास Yes, अच्छा yes. खासा एक सेल्स Setup ऑफिस है. भी है, Yes, we can sir. all fit in here जी. and आज operate. स्टूडियो से To ज्यादा cut the open. long story short, this is a beautiful place, Yes. as I said. I have also said that around Sona, there is also still a lot of land, a lot of open land with clean air. So ये बढ़ता भी जाएगा तो भी crowded नहीं Crowded होगा, नहीं ऐसा मेरा मानना है। Yes, sir. Definitely the density and the और, plant sector. यदि आपने रहा है कहीं गुड़गांव या दिल्ली में during the times when the AQI was 400, तब आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि यहाँ में और वहाँ में रहने में एक तो कहने की बात है ना कैसा लग रहा है, जी. और दूसरा एक्सपीरियंस की बात है कैसा लग रहा है। तो जो Yes. कैसा लग रहा है इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, इट्स लाइक अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर। Yes. और जो लोग यहाँ आगे रहेंगे उनके लिए भी दिस गोइंग टू बी न्यू लीज ऑफ लाइफ। And imagine the children who will actually study here and they'll grow up in a beautiful place like this. I think that'll be a huge win-win for everybody Yes, who sir. wants to come and stay here in Sona. The people living in the center of Gurgaon or Delhi, जो भी मिलते हैं दे सोना के पास उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ए, यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ द रोड्स। बी, यहाँ का एक्वाई लो रहता है हमेशा। सी, यहाँ पे टूरिज्म के लिए दमदमा लेक है जो डेवलप्ड हो रहा है, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी यहाँ पे। एंड द इकोसिस्टम विच इज़ प्रोवाइडेड एयर एज अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन भी है, मॉल्स भी हैं, एम्प्लॉयमेंट भी है। तो एक एरिया को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कमाने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जी जी जी। कपड़ा मीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज फुली डेवलप्ड, और मकान यहाँ बनी रहे हैं रहने के लिए। सो व्हाई नॉट सोना साउथ ऑफ गुड़गांव बीइंग द मेजर हॉटस्पॉट और बीइंग द फ्यूचर ऑफ द। अनुज, मुझे लग रहा है कि हम लोग तो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है ये सिग्नल और ये मैसेज बहुत जगह ऑलरेडी फैल चुका है। Yes, एंड sir. देयरफॉर जब भी कभी कभार आप आते होंगे यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट्स को विजिट करने के लिए, देयर इज अ मोर एंड मोर फुटफॉल, मोर पीपल एक्चुअली हु आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस। यस यस। सो आई पर्सनली थिंक इट्स ऑलरेडी इज अ ग्रोइंग मार्केट, और जो लोग अभी भी दे आर मिसिंग द बस, दे शुड नॉट लेटर ऑन रिग्रेट कि जब समय था तो हमें आ जाना चाहिए था। बिल्कुल। अभी समय है, जो मन बना रहे हैं उनको आ जाना चाहिए। Definitely. So I think it's going to be a beautiful decision. It's definitely a very good option. Yes sir. A lot of people has already missed the bus in case of plots, कि आज से 3-4 साल पहले जो प्लॉट्स के प्राइस 40,000 स्क्वायर यार्ड थे, आज के टाइम पे 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड पहुंच गए। सो दे ऑलरेडी हैव मिस्ड अ बस, बट स्टिल ज्यादा दूर मत जाओ मिसिंग द बस में। एक तो आपके सामने ही बैठा हुआ है। अच्छा। जब मैंने पहली बार फ्लावर वैली विजिट किया था जी, तो कोई 60,000 के जैसे यस अनाउंस कर रहे थे। तो एक सज्जन आए, वो उन्हीं के शायद सेंट्रल पार्क के एम्प्लॉई थे, और आई मीन दे वर कनेक्टेड टू देम, एंड ही सेड, सर, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, I can get you buy a deal for 45,000 rupees a Okay. square yard. And now when I come back here and I'm told 1.5 to 2 lakh per square yard, I really look back and Sir, I feel like kicking myself in the back. Sir, just want to क्या correct you. सिर्फ 5 साल में। Yes, just want to correct you. Central Park is now trading around 2.5 to 3 lakh per See? square yard. That's how much? That's how. From 50 lakh, Yes. 50,000 to 2.5. 2.5. That's like Almost 5x. 5 times. 6x. Yes. 5x. 6x से मिस किया मैंने। Yes. So definitely still, but Still there is still time. Yes, still there is a time opportunity. इनफैक्ट अनुज, मैं बोलूंगा कि सेंट्रल पार्क इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग मैं सोच रहा था 1000 एकड़ है, बट आई थिंक इट्स मोर देन 1000 एकड़, आई थिंक अबाउट 1300 एकड़। Yes, yes. वो जो सेंट्रल पार्क में जिस क्वालिटी का डेवलपमेंट होगा, उस डेवलपमेंट के चलते जो आसपास के सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उनकी भी वैल्यू और उनका लिवेबिलिटी विल गेट एनहांस्ड एक्चुअली ह्यूजली। तो सेंट्रल पार्क एक खुद से ही बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनेगा इस एरिया में जो बाकी के प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके लिए। Definitely. Some other builders are also growing, like Central Park. Central Park is the pioneer in the Sona. We all know Central Park is a great builder, but we have the land parcel, very big land parcel. There is a one builder named Mafia Infra. Mafia Infra has सुना है मैंने। Yes, सुना होगा आपने। उनका प्रोजेक्ट है गोल्डन पार्क in Sector 4 Sona. They started in 2022. They have given almost 300 time appreciation to their investors, to their end users, and they also have a very big land parcel in Sector 5 Sona also.
सो दे आर ऑल्सो कमिंग विद देयर प्रोजेक्ट. तो सेंट्रल पार्क को देख के रेप्लीकेट होके ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स आ रहे हैं, नए आ रहे हैं जो डेवलप हो रहे हैं, एंड मैफेयर इंफ्रा इज ऑल्सो वन ऑफ देम. तो वट डू यू थिंक अबाउट द प्राइस पॉइंट? लोग आज भी कहते हैं, सोना की मेंटेलिटी उनको वही रहती है कि बहुत दूर है, 1 घंटा लग रहा है सोना जाने में. एंड द टफेस्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू, जो क्लाइंट मेरे से पूछते हैं, व्हाई द प्राइसेस आर सो हाई इन सोना? दे थिंक दीज प्राइसेस आर टू हाई. अगर कोई बोल रहे हैं सोना में प्राइसेस हाई हैं तो उनको एक कैटलॉग गुड़गांव के प्राइस लाइन के बारे में दिखा के सिर्फ दे देना चाहिए, देन दे विल चेंज देयर माइंड. और जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मेफेयर कर चुका है, उनका एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है, उसको देख के किसी का भी मन ये कन्विंस हो जाएगा कि हाँ मेफेयर जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो अच्छे से काम करता है, उसके ऊपर अच्छे से डेवलप करता है. तो जो इनका गोल्डन पार्क है उसमें बहुत सारे यूनिट्स बनने शुरू हो गए हैं. और एक बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट्स बने हुए हैं, सारे रोड्स हैं, सारा सीवेज प्लान है, सारा इलेक्ट्रिकल लेआउट है, सारा वाटर सप्लाई है. उनका अपना एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बन चुका है, एक उनका क्लब बना हुआ है, एक पार्क है. So I think they are doing a good job. और एक रीजन उनका डूइंग अ गुड जॉब है कि आज के जो competitive मार्केट में ये सबको मालूम है कि अगर अच्छा काम किया तो सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव नहीं किया तो कमिटमेंट शुड बी डन. हाँ, so Mayfair is doing a good job. Yes. And they deserve kudos for their efforts. Definitely, sir. Even the people have appreciated their project, their first project. Now they are coming with another project which will come later. तो सर आज हमने विजिट करे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स. एज इन जेनरिक टर्म, आपको साउथ ऑफ गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स कैसे डिफरेंट लगे एज कम्पेयर टू अदर माइक्रो मार्केट्स, फॉर वी से द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव? हाउ डू यू फाइंड साउथ ऑफ गुड़गांव डिफरेंट फ्रॉम देम, और देयर प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्ट की जेंट्री में कुछ अलग है यहाँ पे? साउथ ऑफ गुड़गांव के अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं, विच अ लार्ज नंबर नाउ, मेरा अपना परसेप्शन ये है कि गुड़गांव के जितने भी नोन बिल्डर्स है सब आ चुके हैं यहाँ पे या आ रहे हैं यहाँ पे. वन रीजन इज दैट ऑल ऑफ देम आर सीइंग पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन सोना, इसलिए वो सब यहाँ पर आ रहे हैं. दूसरा, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड सी जगह नहीं दिख रही है. सारे जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें अपनी अपनी जगह है, स्पेस है. And all of them are emphasizing on the fact that this is a nice open space, as you said, fresh air, nice place. And it is now become a misnomer. ये तो एक गलत कैलकुलेशन हो ही गया. जो लोग पहले ये सोचते थे कि बहुत दूर है, बहुत डिफिकल्ट एक्सेसिबिलिटी है, आज की तारीख में जो आएगा उसको पता लगेगा कि वो स्टेटमेंट सच नहीं है. मैं टाइम टू टाइम कभी न्यू गुड़गांव जाता हूँ, मुझे वहाँ जाने में बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक ज्यादा टाइम लगता है. हाँ. बनिस्बत की यहाँ पे आने में, सोना रोड में आने के लिए. सो सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इतने सारे प्रोजेक्ट विजिट करें, एक कोई आपका फेवरेट हुआ हो, कुछ पसंद आया हो आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर? देखो, मेरा मानना ये है कि मेफेयर जो हम लोग स्टील प्लस 4 का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो वाला प्रोजेक्ट में एक तो हम अफोर्डेबल प्राइस में एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट उनको दे रहे हैं खरीदने वालों को. इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज फैमिली विच इज़ एस्पिरेशनल, नीड्स अ गुड हाउस, नीड्स अ नाइस ओपन स्पेस. उनके लिए बहुत अच्छा है वो. सो मेरे हिसाब से आप चाहे प्राइस के हिसाब से देखें, लोकेशन के हिसाब से देखें, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें, सेगमेंट के हिसाब से देखें, दैट्स 10 out of 10 in all aspects. Yes, sir. They have shown the commitment in their first project, and we are hoping that they are doing more than their commitment in the second project. And to everyone watching, if this episode added a value for you, please like, subscribe and share Gurgaon Skyline. Till then, Advocate Anuj Chauhan from Gurgaon Skyline. Take care.